Assalamu alaikum ji, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot, and as you can see, I have with me today Mashal Khan. Assalamu alaikum Mashal, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. I am very well, Hassan. Thank you so much for having me. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. It's such a pleasure to have you with us because थोड़ा सा हक right from the first episode up until now हमने enjoy भी बहुत किया है. कभी कभी हमारे दिमागों में सवाल भी बहुत आए हैं उसको देखते हुए, तो हमने criticize भी बहुत खुल के किया है. But it's really so sweet of you to agree to this interview because मुझे लगा कि हमने थोड़ा सा आपकी पूरी टीम को इतना कुछ तपा दिया होगा कि आप लोग शायद हमारी शक्लें ना देखें. No, I don't think so. I feel like हमारी पूरी team, we're all made up of so many people who take criticism very well. तो हम अपनी भी हमारी जो थोड़ा सा हक की chat है उसमें भी हम हमेशा feedback दे रहे होते हैं कि okay next episode में let's make this, like let's do this differently, let's add this differently. So no one minded anything at all. Everyone took it well. चले, that's great, that's good to know. So little bit about Hareem. पहले तो ये बताएं कि आपको ये कैरेक्टर ऑफर कब हुआ? If I am not mistaken, आप you made your debut with Suno Chanda season 1. We saw you in Suno Chanda season 2. Then you did Khas, and I saw you in Khas as well. And Khas के बाद this is I believe your fourth project, या आपने कोई और भी किया बीच में जो मैंने मिस आउट कर दिया? I did one more project in the middle called Mere Hamdam. अच्छा. Which was a fun character as well. लेकिन वो उसको इतनी हाइप नहीं मिली थी, so I think that kind of got lost. चले ठीक है, 5 में से आपके 4 ड्रामे तो मैंने देखे हुए हैं ना, so I'd like to believe that I know your career journey up until now fairly well. तो जब आपके पास थोड़ा सा हक आया, तो वो जो आप दूसरा ड्रामा कह रही हैं वो आई थिंक उससे पहले होगा क्योंकि आखिरी ड्रामा आपका खास था. खास के बाद नाउ वी सीइंग यू इन थोड़ा सा हक. तो जब ये कैरेक्टर आया तो क्या थॉट प्रोसेस क्या था, क्यों आपने एग्री किया? So when I received the character, actually मैं एक different character के लिए audition कर रही थी. I met Abdullah and Abdullah Seja, and so he was like, I have this character for you, and you can come in and meet the director in 2 days. तो मैं जब 2 दिन बाद गई, I was meeting a different director. तो मैं थोड़ी सी I was like, you know, I'm not prepared for this character. मैंने अपने दिमाग में वो दूसरा character बन के आई थी. And now suddenly I'm auditioning for a character who I don't even know. They told me एक बहुत sweet सी लड़की है, उसका नाम हरीम है, थोड़ी dumb सी है, लेकिन दिल उसका बहुत साफ है, and she's basically Imran Abbas's मंगेतर. I was like ठीक है. So I met Ahmed Bhatti, and Ahmed Bhatti साहब तो he's like Ahmed Bhatti, so I was just like this in front of him. Now I was like shit. So I just wanted कि मैं इनको like impress कर दूँ. So first when I gave the audition, he was like, and I was just like, shit, मैंने कुछ कर दिया. You know, I've messed this up. गया रोल हाथ से. And he was like, you know what? You're a really good actor. I think we can work together. And I was just like, तो उन्होंने थोड़ी अपनी तरीके से मुझसे, you know, dialogues बुलवाए. He made me do it in the way that he wanted me to do it. And then he was like, ठीक है, आपको बताते हैं. So I was like, ठीक है. So I'm very skeptical about these things. मैं कभी भी अपनी hopes high नहीं करती थी because I was like, you know, whatever. Like, what's meant for me is meant for me. So then I get a call 2 days later saying कि आप आके script सुधा लें, आप, you know, like come and read the character and everything. So I was like, that's amazing. मैंने फौरन sign किया, and then I went home to read the scripts. तो मेरे पास आई थी total 8 episodes. तो 8 episodes में ये हुआ था so far कि, you know, हरीम सहर को डिफेंड कर रही है एंड पीछे से सहर और जामिन का वो सब कुछ रोमांस चल रहा है. तो I immediately connected with this character because I feel like मेरी एक दोस्त है, एक बहुत स्वीट सी दोस्त, and she's like this, जो दिल की बहुत अच्छी है, she's very kind, और लोगों में उसको कभी कुछ negative नहीं नजर आता. So I kind of connected with that character on that basis. And so I was really excited that शुरू से, and especially because मुझे पता नहीं था कि आगे होगा क्या. So it's like we all were moving forward together on this journey of finding out कि इन characters के साथ होता क्या है. अच्छा, अब मुझे एक सवाल जो immediately मेरे दिमाग में आया, जो आपने कहा कि आप you were meant to do another character. तो are you talking about another character in थोड़ा सा हक or in some other drama? No, in some other drama.
ठीक है, ओके। तो जब ये आपके पास कह रहे, अब आपने बातों में ये कहा कि जब आपको ब्रीफ किया गया तो आपको ये कहा गया कि ये हरीम है, स्वीट सी है, डम सी है। पर्सनली मुझे नहीं लगा अभी तक कि हरीम डम है कहीं से। ये वैसे Really? मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात से। ये क्यों Really? कहा Okay. आपने? ओके सो बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि ऐसी जो लड़कियां होती है ना, जो इकलौती माँ बाप की लाडली, वेरी शेल्टर्ड, तो ये वो केजीएस के बर्गर वाले बच्चे होते हैं ना, वैसे हैं. एंड सो बेसिकली दीज किड्स दे आर नॉट डम इन द इंटेलेक्चुअल सेंस. उनके अंदर वो स्ट्रीट स्मार्ट्स नहीं होती, उनको चालाकियां नहीं आती, और उनको ये भी नहीं पता होता कि लोग मतलब आपसे झूठ बोल सकते हैं. दे आर अनअवेयर. बट आई बेग टू डिसएग्री अगेन, बिकॉज अभी जो चालाकी हरीम ने दिखा दी है, ये तो मतलब है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस का कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये जो उसने सारा बेहोशी का अब ड्रामा वो हो किया। गई है ना, सर्कमस्टांसेस ने उसे कर दिया है ऐसा, हाँ, वरना वो थी नहीं है. पता है, क्योंकि पहले एपिसोड से देख रहा हूँ, और हरीम इन पर्टिकुलर जो हरीम की जर्नी रही है, मेरा हमेशा से स्टांस यही रहा है कि हरीम ने ना कोई गलती की है अभी तक, ना उसने कोई गलत स्टेप उठाया, ना उसने कोई नाइंसाफी की है किसी भी और कैरेक्टर को लेके, स्पेशली सहर के कैरेक्टर को लेके। और जो भी ज्यादती हुई है वो इनफैक्ट हरीम के साथ हुई है। जो भी आई कंप्लीटली एग्री. नाइंसाफी हुई है वो हरीम के साथ हुई है। सो इट्स एक्चुअली कम एज अ शॉक टू मी व्हेन यू से कि यार कि ये डम सी है, या इसको पर्टिकुलरली द फैक्ट यू सेड कि डम सी है, बिकॉज मैं उसकी डमनेस को जो आपको लग रही है उसकी हमेशा स्वीटनेस समझता आ रहा हूँ। शुरू में भी उसकी जब सहर या आई है घर में। इट्स भोलापन ना, वो मासूमियत. हाँ, तो अच्छा, या अब जिस मोड़ पे ये स्टोरी आ गई है, वेयर सहर प्रिटी मच नोज के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी हरीम और हरीम की फैमिली। हरीम प्रिटी मच नोज के जामिन जो है उसको तो बस हेड ओवर हील्स प्यार हो गया शहर के साथ, तो वो तो उसका खता नहीं छोड़ेगा। तो यू एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग हरीम, हाउ डू यू सी दिस डायनामिक दैट देयर ही इज अ मैरिड गाय? उसने पहले वो ये कहता है कि जी मेरे ऊपर मुझे फोर्स किया गया सॉर्ट ऑफ शादी करने के लिए। ठीक है, फोर्स कर लिया गया तुम्हें, तुमने शादी भी कर ली, बट देन ही गोज एंड फॉल्स इन लव विद द गर्ल। देन वो अपनी मंगेतर को बताता नहीं है कि यार कि मेरा एक दूसरी लड़की के साथ मुझे प्यार हो गया या मैंने शादी की है। शादी एंड निकाह के टाइम पे वो उसको बता देता है। मैं तो ये कहूंगा उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि हरीम को शादी नहीं करनी चाहिए, बट हरीम को उसने ये इंडिकेशन तो नहीं दी थी उस वक्त कि मैं कुछ शहर से प्यार करने लगा हूं। उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं उससे शादी मेरी फोर्सफुली हो गई थी। तो हरीम ऑलवेज थॉट कि ही इज स्टिल इन लव विद मी, और हरीम ने उससे शादी कर ली कि ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूँ, ये उसको तलाक दे देगा एंड वील लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट लिटिल डिड हरीम नो कि वो तो 3 दिन उधर रहना चाहता है और 3 दिन इधर रहना चाहता है। तो ये डायनामिक को आप कैसे देखती हैं? मैं कहती हूँ कि इस लड़की के साथ सख्त जाती हुई है. दीज आर लाइक, एक चीज है कि आपको बचपन से एक चीज आपके पास है, उस चीज से आप मतलब क्या कुछ 20-22 साल से आप मोहब्बत करते हो उस इंसान से. दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लॉट ऑफ लव. और फिर ये बंदा, नॉट ओनली इज ही योर फियांसे, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका कॉन्फिडेंट है, वो इंसान है जिसको आप डिफेंड करते हो अपनी माँ के सामने, हर वक्त डिफेंड कर रही होती हो, उसकी इज्जत के लिए लड़ रही होती हो. एंड फिर वही बंदा आके आपको डसते. So it's very painful. So I personally think I don't think Harim hates Sahar. I've never thought she hates Sahar. मुझे हमेशा लगा है कि she is hurt by Sahar. उसे दुख है कि मैंने सहर के लिए जितना किया, मैंने उसे अपनी बहन माना. मेरी जिंदगी में कभी कोई बहन भाई नहीं थे और मैंने इसे अपनी बहन समझ के अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया था, अपने घर में जगह दी थी, इज्जत दी थी. और फिर इस इंसान ने सबसे बड़े धोखे में इतना उसका मतलब वेट था उस धोखे में. सो आई that's what I think, that she's hurt by Seher and that जामिन ने तो बस उसे तोड़ दिया है. तो आपको क्या लगता है कि हरीम अभी भी क्यों हेल बेंट है जामिन के साथ रहने के लिए? अब तो उसे सिचुएशन क्लियर हो गई है। चले जब शादी हुई थी तब नहीं पता था कि जामिन प्यार करता है सहर से, अब उसको समझ आ गई है।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्टोरी रिवील कर दें, बट यू एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग हरीम, पर्सनली आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आपको क्यों लगता है कि हरीम अभी भी क्यों पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई जामिन के? So Harim obviously is not mentally completely there anymore. We understand that. So from my understanding of the character, मैंने जितने scenes पढ़े हैं in depth, I've understood that she is a very codependent person. So she always has to have someone जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, और जब उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नहीं होता तो वो हर जगह गिरना शुरू हो जाती है, जैसे पिछले एपिसोड में हो रहा था कि बाप पीछे नहीं खड़ा हुआ था, माँ नहीं खड़ी हुई थी, चची नहीं खड़ी हुई थी, जामिन नहीं था. So Hareem was just kind of all over the place. So she's not only codependent, लेकिन I think she's severely depressed right now. And एक होता है ना, when a person goes through PTSD, when you have post-traumatic stress disorder, there's a time period of shock जिसको you have to live through that time to accept it and reach a point where you become stagnant and then you begin to recover. लेकिन इस लड़की के साथ मतलब शॉक पे शॉक पे शॉक पे शॉक, like they're just not giving her time to be okay. Like छोड़ दे बच्ची को, संभाले उसे, understand her, कोई समझ ही नहीं रहा. So I think that she's just not entirely there and she needs help, लेकिन कोई उसकी हेल्प कर नहीं पा रहा. बट वुडंट यू अग्री कि जो हरीम की मदर है, जिनको हम प्यार से राबिया ताई कहते हैं, तो राबिया ताई इज, आई फील दैट शी इज बीन देयर थ्रू आउट, एंड कुछ उनके जो एक्शंस हैं वो ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल हैं, जो उन्होंने जामिन को मार पड़वाई है अभी हैदराबाद में, वो ठीक है, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था. बल्कि मैं तो एक पॉइंट पे मैंने ये भी कहा कि ठीक है यार, बेटी के प्यार में एक इंसान अगर आपकी बेटी के साथ इतनी ज्यादती की और इतना अनफेयर हुआ हो, अगर आपने उसको थोड़ी सी मार पड़वा दी तो ठीक है, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था, इतनी मार नहीं पड़वानी चाहिए कि वो बेड पे लग जाए, वो भी ठीक है. बट राबिया ताई हैज ऑलवेज बीन देयर, शी इज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड, चाहे वो हरीम के फादर के सामने हो, चाहे जामिन के सामने हो, चाहे अगेन मुनज़्ज़ा ताई, हम प्यार से उन्हें कहते हैं, मुनज़्ज़ा ताई के सामने हो, शी इज ऑलवेज देयर. एंड इवन मुनज़्ज़ा ताई हु इज प्लेइंग योर मदर इन लॉ, शी आल्सो कम्स टू यू. तो जो अगर देखा जाए, हमें जो नजर आ रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बट हमें तो ये लग रहा है कि ये तीन खवातीन अब सॉर्ट ऑफ मिलके स्कीम कर रही हैं शहर के खिलाफ. आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं. So the way I see it is कि एक तो जब एक लड़की अपना घर बसा रही होती है ना, उसे बसाने दे. ठीक है, whatever happened, Hareem made her choice. She could have chosen कि यार मैं जामिन को छोड़ दूं. नहीं, she accepted that okay, this is the wife, I'm going to deal with this problem. She tried to win him. When she was trying to win him, जो हरीम की अम्मी है, she kept doing जाती with जामिन. उनकी वजह से जामिन गया घर से. You know what I mean? So she didn't support Hareem. ऊपर से the mother-in-law. The mother-in-law, like I feel like सबके ना अपने अपने एजेंडाज हैं, तो सब अपने तरीके में अपना बेस्ट समझते हुए वो कर रहे हैं जो उनको लग रहा है यार दिस इज द बेस्ट फॉर दिस गर्ल, दिस इज हाउ आई विल हेल्प हर. लेकिन असल में व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि वो लड़की कुछ और कर रही होती है, माँ कुछ और कर रही होती है, ताई कुछ और कर रही होती है, एंड दे ऑल काइंड ऑफ जस्ट गेट ऑल ओवर द प्लेस एंड जामिन जस्ट लाइक आर यू थ्री क्रेजी, एंड दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस टू हिम. So I feel like Hareem just wanted कि उसकी अम्मी उसे थोड़ा support करे. You know, बस she should be a shoulder to cry on. अगर वो जामिन को win करना चाह रही है, वो बोले हाँ बेटा तुम अपना घर बसाओ, I'm with you, we'll deal with this issue later, right now win your husband back. लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जिद खड़ी की हुई थी, which was another factor of stress for this girl. अच्छा, पर्सनली मैं ना हरीम का मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ. मुझे लगता है कि हरीम ने अभी तक कोई गलत नहीं किया, लेकिन द वे द कैरेक्टर हैज बीन रिटन, डू यू फील एज एन एक्टर हु इज पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर कि हरीम को थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि वही एक हमारे ड्रामों का ये भी अक्सर प्रॉब्लम होता है ना, जो लड़की अच्छा शलवार कमीज पहन के सर पे दुपट्टा रखे, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, बट यूजुअली होता ये है कि जो भोली भाली मासूम है वो वाली सही है, ये थोड़ी सी जैसे आपने कहा बर्गर है या कूल है या अंग्रेजी बोल लेती है या सर पे ट्रेडिशनली दुपट्टा लेके नहीं फिर रही, ये जो है इवल है, तो बस अब जो जामिन है वो उसके पास रहे और उसके पास जाए तो सही है, इसको कटा दे तो बेहतर है. I did think this जब मेरे पास 23rd episode तक scripts आई थी ना, I was
quite upset. मैंने like I went to my director साहब and I was like, अहमद भाई सुने, आप लोगों ने वही किया इस कैरेक्टर के साथ जिसका मुझे डर था. And he was like, Marshall, wait. I was like, अहमद भाई मैं नहीं कर सकती ये चालाकियां, ये कैरेक्टर में है ही नहीं. He was like, Marshall, just do it. सुन लो मेरी बात, कर लो. मैंने कर ली. फिर लास्ट एपिसोड आया and then I understood. I get it now. लास्ट वाला कौन सा? अभी लास्ट की बात करेंगे, इससे पिछले वाले की? The last episode, the final wind-up episode. अच्छा, the finale of थोड़ा सा. अच्छा. Yeah. अच्छा, सो मतलब इसका मतलब है कि हमें सरप्राइज मिलने वाला है, फिर जो हम सब सोचते आ रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला. सारी चीजें रैप अप हो जाती हैं. Everything gets wrapped up और हर एक कैरेक्टर का वो एंड देते हैं. अच्छा. Everyone gets. अच्छा, that's really interesting because हमारा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ड्रामों के साथ मसला यही होता है कि हर एक कैरेक्टर को वो रैप अप नहीं करते, कंक्लूजन नहीं पहुंचती. बस एक आर्बिट्री से एक हमें पता लग जाता है कि अच्छा जी ओके, फलान आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. बाकियों को क्या हुआ कोई समझ नहीं लगती. Yeah, I agree. We have that issue with our dramas. लेकिन इस ड्रामे में another thing that we were all happy about, हमने actually we had the final episode rewritten 3 times. अच्छा. Because on whose insistence I would like to ask that. I feel like everyone, like हम सब जब पढ़ रहे थे ना, हम सब like सारी चीजें एक टीम की तरह करते थे. तो like the director would come, give all of us the script, be like आप सब पढ़ लें अपनी अपनी endings and let's discuss it. तो हम सब पढ़ते थे, then we'd sit and give each other feedback. और फिर उस पे हम एक consensus पे आते थे. Then we'd be like, okay, you know, let's ask the writer if he thinks it's okay to change this. तो हमारे पास आई थी 3 options, लेकिन the same endings, just written with different words. And then in the end, I guess we all chose the one that we thought was the most beautiful. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज यूजुअली मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है कि इतना रूम हो कि जो चीज एक लिख दी गई है उसको इतना आप लोग एक्टर्स के पास भी इतना ये ऑप्शन हो कि वो डेलिब्रेट करें सारे बैठ के कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर दें, तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर दें. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप रिवील कर रही हैं. इसकी क्या वजह है? I think it's all because Abdullah Seja is a wonderful producer. मैंने जितने producers के साथ काम किया है, he's the only one who I actually like. I genuinely think he's a friend of mine, and I want the best for him, and I enjoy working with him. And I feel like Abdullah दिल के इतने अच्छे हैं कि आप उनसे मतलब अगर honestly जाके कोई बात करो ना, तो he'll listen to you. That's the best thing about him. He's very understanding. So I think it's all because of him. चले, I mean, I'm now excitedly looking forward towards the finale, to the finale. मुझे ये बताएं कितने episodes और रह गए अगर if you're at liberty to reveal this information. यार honestly we were supposed to have 25 episodes. Scripts तो हमारे पास 25 आई थी, लेकिन वो scripts इतनी मोटी थी कि I feel like right now 23rd episode चला था, so I think maybe another 5 episodes. अच्छा, another like 5 episodes. Yeah, maybe like 4, 5, 6, 7, something like that. Because like every time I watch the episode, I'm like, यार लेकिन ये twist कब आएगा? लेकिन ये कब आएगा? लेकिन फिर ये कब आएगा? So इतनी सारी चीजें अभी बाकी है कि I don't like अंदाज़न I think 4, 5 at least होंगे. मार्शल वो ड्रामा ही क्या ना जो एटलीस्ट 5-6 एपिसोड्स ना खींचे एक्स्ट्रा. अगर 25 पे और 24 पे खत्म हो ही जाए हमारे ड्रामे तो फिर तो क्या ही बात हो. 5-6 एपिसोड्स तो नॉर्मल है खींचना किसी ना किसी ड्रामे. बट ये जो ट्विस्ट आया ना सेकंड लास्ट एपिसोड में, वो बड़ा ही कोई शॉकिंग ट्विस्ट था. और हमने वो एक रिव्यू किया जिसमें हमने कहा यार ये डोमेस्टिक वायलेंस, हमें तो लगा और हमने तैयार कर लिए थे अपना सारे बुलेट्स पूरे फायरिंग करने के लिए. ये डोमेस्टिक वायलेंस ये दिखा रहे हैं और वो फिर उसका हाथ भी चूम रही है जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा. बट आई एम सो ग्लैड कि उस चीज को आप सब लोगों ने, ऑफ कोर्स जो आप बता रही हैं कि एक्टर्स की भी इसमें से है, तो आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू टुक दैट कॉल एंड आई वांट टू पब्लिकली एक्नॉलेज दैट एंड अप्रिशिएट योर एंटायर टीम कि आपने ये असल में नहीं होते हुए दिखाया है कि उसने थप्पड़ खा लिया है और फिर वो उसके हाथ को चूम रही है. अगर वो प्लान का हिस्सा था तो वो जस्टिफाइड है. बड़ी जबरदस्त बात है. The credit of that all goes to the writer. मैंने देखा है, I have noticed this about Adil भाई, Adil Razak. एक तो उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है, it's like
मैं और राजू भाई जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जैसे नई स्क्रिप्ट्स आती थी ना, हम बैठ के सेट पे एक साथ पढ़ रहे होते थे और हम लाइक एक्चुअली लाइक आंसुओं के साथ लाइक बिलक बिलक के रो रहे होते थे बिकॉज इतनी खूबसूरती से लिखा गया था. बट इट्स ऑल लाइक द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज he didn't show domestic violence. It's all like, so I don't think any of the actors, like it's all the director and the writer with that. But going forward, Mashal, you as an actor, have you decided or have you taken that call ke unless it's a slap of, you know, slap like this, which is integral to the script, that you won't let that happen in your dramas? Ke you won't let the male character give you a slap? Like, see, I think that the thing is that जब आप एक character कर रहे होते हो ना, you okay, so we play different characters, right? Like a lot of actors have played characters who have, been pedophiles. There have been characters that have been rapists. It's not, it doesn't matter if your character is accepting that. The point is कि आप audience को कैसे दिखा रहे हो. अगर आप जैसे कि the whole situation that was created with Zamin and, you know, like Harim said कि, you know, मैंने थप्पड़ खाया है लेकिन like I'm not okay with it. Like that whole thing, the audience picked up on that. Like you guys picked up on that and you saw that, you know, okay, it's not being shown as something that we agree with कि लड़कियों को थप्पड़ खाने चाहिए. But it's that, so I feel like कभी कभार ना आपको अपने कैरेक्टर्स के लिए थोड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है. Yeah, बिकॉज वो कैरेक्टर्स ही अपनी अपनी पर्सनालिटीज होती है ना, एंड वो उस पर्सनालिटी के मुताबिक जाएगा. सो मे बी योर कैरेक्टर इजंट नेसेसरली अ फेमिनिस्ट. Maybe your character is someone who's more oppressed, someone who's more suppressed, someone who has Stockholm syndrome. You know, बहुत सारी चीजें होती हैं. वो तो ठीक है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने में कोई बुराई नहीं है. एज अ मैटर फैक्ट करनी चाहिए, बट देयर शुड ऑलवेज बी रेट्रीब्यूशन. अगर किसी ने इस तरह का कुछ किया है या अगर कोई गलत स्टेप लिया है या अगर किसी ने किसी को डोमेस्टिक वायलेंस किया है या थप्पड़ किया है, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा मार दिया खत्म हो गया, अगले एपिसोड में आपने उसको भुला दिया उस चीज को. उसके ऊपर कोई ना कोई उसका कॉन्सिक्वेंस जरूर होना चाहिए. इज व्हाट I mean, and I've always upheld this view. Anyway, मुझे थोड़ा सा आप on a lighter note ये बताएं, एक्सपीरियंस कैसा था सबके साथ काम करने का? You've got इमरान अब्बास, आयजा खान, सबा फैसल साहिबा, इतने सारे लोग हैं आपके साथ, फिरदौस जमाल साहब. कैसा था सबके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? It was amazing. Like मैं हमारे जो last 2 दिन थे ना शूट के, second last day पे इमरान left and then last day पे we all wrapped up. तो उन दोनों दिन मैं बहुत रोई थी because this was the first time कि I felt like मैं एक कास्ट के साथ ऐसी जुड़ गई. Me and Imran became so close. Me and Aiza became so close. Even Firdaus Saab, like when I was doing my last scene with Firdaus Saab, I was crying with actual tears. मुझे actually रोना आ रहा. Same with my last scene with Sabah Api, वो बहुत emotional था. That was very emotional. My last scene with Imran, my last scene with Aiza, all of these, like, because these people are such kind, special people. And in fact, जब मैंने drama sign किया था, मैंने हमारे director से पूछा भी था. I was like, अहमद भाई, मैंने आपको अपने उस्ताद के तौर पे ले लिया है. तो आप मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं करेगा ना सेट पे, बिकॉज मेरे पिछले सेट्स बहुत खतरनाक, some of them have been very deadly and I have not enjoyed them. And अच्छा, so ये इंटरेस्टिंग बात है. अब आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप किन सेट्स की बात कर रही हैं. यार जिन सेट्स की कास्ट 25 लोग होगी तो वहां आप सोच लें 2 कमरों में 25 एक्टर्स और 25 एक्टर्स की ईगोस. यानी कि सुनो चंदा के सेट पे ठीक ठाक फड्डे हुए हैं, आप ये बताना चाह रही हैं? फड्डे नहीं थे. I just feel like it was such a stressful environment because हम 18 घंटे शूट कर रहे होते थे दिन में, you know, and 18 घंटे शूट करने के बाद कभी कभार AC ऑफ हो रहा है because it was the dead of summer. It was like 49,000 degrees. And so एक AC नहीं काम कर रहा, ऊपर से पानी की बोतलें ठंडी नहीं है, फिर खाना लेट सर्व हो रहा है, ऊपर से हमारी नींदें नहीं पूरी हुई थी, ऊपर से there's lots of smoke inside the room because lots of like the male actors are like smoking and like, you know,
So it was just a lot. So it was like terrifying. And मैं तो like it was my first experience. तो मैं बिल्कुल ना डर के ना कोने में हो जाती थी. I was like, no thanks, I'm out. Is that the reason why we're not getting to see season 3 of Suno Chanda? I have no idea because literally I feel like हम actors को कुछ भी नहीं पता चलता until the producers have decided everything और फिर वो just like call करते हैं जी आगे sign कर ले शुरू हो रहा है next season. We're just like what? But अगर आपके पास आता है third season तो आप करेंगी या नहीं करेंगी? I have no idea if I'm going to do it or not. It all depends because I feel like, to be honest, comedy is not my thing. Neither do I enjoy comedy. Sorry to say, nor do I find Pakistani comedy funny at all. I find it ridiculous. I think it's. Do you find it funny? Like it's like लोग गिर रहे हैं, टेढ़े मुंह के साथ बात कर रहे हैं. No disrespect to anybody again, but हमारे serious dramas कभी-कभी इतने comical हो जाते हैं कि मैं comedy की क्या ही बात करूं. Dramas that are meant to create, raise awareness about serious social issues. Sometimes they become so comical, and like when I'm watching those dramas, I'm like, dude, why am I even watching this drama? But then again, that's my job. We've got to watch dramas. We've got to review them. थोड़ा सा अब ये है कि मैं शुरू में तो मुझे लगता था कि and in all honesty कि यार बड़ा ही कोई ridiculous plot है. But wait, Hassan, you didn't answer my question yet. Did you find Suno Chanda funny, and do you find dramas like that? Yeah. I thoroughly enjoyed Suno Chanda both seasons. Did you enjoy it because it was ridiculous or because you found the humor in it? No, I found the humor funny. It appealed to my humor. तो मुझे नहीं पता, of course, लोगों के अलग-अलग तरह के sense of humors होते हैं, तो लोगों को शायद कुछ और लोगों को ना पसंद आया हो. But मेरा क्योंकि सुनो चंदा intrinsically मुझे लगता है कि उसमें पंजाबी humor थोड़ा सा ज्यादा है, and because I am Punjabi by default, so मैं थोड़ा सा उसके साथ associate कर जाता हूँ. तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दोनों seasons को मैंने बड़ा enjoy किया. कुछ परफॉर्मेंसेस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है 19-20 हुआ या ऊपर नीचे हुआ, but as far as the humor is concerned, I enjoyed. मुझे बहुत मजा आया. Okay, fair enough. लेकिन वो अलग बात है कि जो सीरियस ड्रामे वो हमारे ज्यादा ह्यूमरस होते हैं कभी-कभी. बट मुझे अब ये बताएं कि अब ये जो हमारा चहीता ड्रामा है थोड़ा सा हक, 4-5 एपिसोड्स आगे रह गए हैं. Without revealing anything about the plot, what is the message that you would like to give out to all the viewers who are, lovingly watching the drama? I would just like to thank everyone. Everyone has been so supportive. Itna pyar dikhaya hai. Like people have been so kind. They've sent me messages saying कि वो रो रहे हैं scene को देख के, and that ये dialogue उन्हें बहुत hit किया था. And so I just want to thank everyone for helping us make this drama, what it is today. In a way, also, Thoda Sa Haq has given you that platform where I think, compared to your previous dramas, because your role is, your character appears in almost every episode. In almost you're there in every episode, and you're such an integral part of the entire script. तो मेरे ख्याल में ये आपको भी शायद ये अंदाजा हो, लगता हो कि ये आपका पहला full fledged ऐसे lead role है. Would you agree? Hassan, I'd say this is the first time I actually acted. क्योंकि मुझे इससे पहले मौका नहीं मिला था. Neither did any other director, nor did any other producer give me the chance to show कि भाई मैं act कर सकती हूँ. This was the first time, and I want to thank Ahmed Bhai, the director, and Abdullah कि इन्होंने मुझे trust किया था. Because honestly, looking back at my previous work, I don't know if I would have trusted myself with a character like Hari, because it was very tough. You've done such a fantastic job, और मैंने ये बार-बार अपने रिव्यूज में भी बोला है कि हमारे स्क्रिप्ट के साथ 100 मसले हों या हमें 100 कंसर्न्स हों या 100 प्रॉब्लम्स हों, एक चीज जो कि एपिसोड 1 से लेके अब तक कंसिस्टेंट है, दैट इज योर परफॉर्मेंस. एटलीस्ट आई थिंक you've done a fantastic job, and आपकी एक्टिंग और जो हरीम की कैरेक्टर एवोल्यूशन जैसे जैसे हो रही है,
उसके साथ साथ जिस इमोशनल टर्मोइल से जिस तरह वो गुजर रही है, आई थिंक यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। और मैं एटलीस्ट अब कभी कभी आपका असल नाम मशल की जगह हरीम कह देता हूँ, जब हम कॉन्वर्सेशन वैसे भी कर रहे होते हैं ना, कह रहे कि हरीम का इंटरव्यू कर लेते हैं, हरीम का कर लेते हैं, बिकॉज यू डन सच अ गुड जॉब। और बड़ा वो आई थिंक एक एक इट्स प्रूफ ऑफ योर गुड परफॉर्मेंस कि आपके कैरेक्टर का नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। ये मेरे लिए ऑनेस्टली हसन, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि समवन हैज एसोसिएटेड मी विद द character so strongly that they associate my like their name with my identity. And thank you so much, and I'm so happy because honestly मैंने इस जो 7 महीने हम शूट कर रहे थे ड्रामा, I turned down every other offer during this time. I was like, I'm sorry, I have to focus on this character, and I'm glad that paid off. That shows, absolutely that shows. तो मुझे आप ये बताएं कि आपको पर्सनली इसका कैसा फीडबैक मिला है फैन से, व्यूअर से? फैन फॉलोइंग आई सपोज बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि ट्रेंड भी बहुत किया है थोड़ा सा, रेटिंग्स भी जबरदस्त आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो कैसा आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसे मैसेजेस आ रहे हैं? Amazing. Like I get so many messages full of love. मेरी अपनी अम्मी and like बहन like बैठ के रो रही होती हैं while watching the episode. मेरी एक दोस्त के सूती, she's so refused to watch any more episodes. She's like, I can't see you like this. I just can't. So and like the fans like send me so many messages saying कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छी acting की है, अल्लाह आपको कामयाब करे, and वो इतनी दुआएं देते हैं कि I honestly feel like I am the luckiest girl in the world. तो आपको किसी ने कोई कैरेक्टर को लेके ये तो नहीं बोला ना कि हरीम बड़ा गलत करी है हरीम? क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हरीम का नंबर 1 सपोर्टर हूँ, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि लोग हरीम के कैरेक्टर को कैसे परसीव कर रहे हैं आपकी नजर में। I think in total I've got 2 negative comments ever about Hareem. Just saying कि यार सहर और जामिन को छोड़ दो, वो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. Both of the comments have the same thing. And I was like, I get that because like obviously like Aiza and Imran have such amazing chemistry. उन दोनों ने एक साथ 4 ड्रामे कर लिए हैं, and उनके couple की एक अलग ही fan following है. So I completely understand that. ठीक है, अच्छा, फाइनली मूविंग ऑन, थोड़ा सा हक के बाद हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? क्योंकि ये 4-5 एपिसोड के बाद जब खत्म हो जाएगा तो क्या है आगे? कुछ समथिंग अबाउट योर वेंचर इनटू मूवीज सोच रही हैं, नहीं सोच रही हैं? ऑफर्स आई हैं, नहीं आई, क्या सीन है? एंड ऑफ कोर्स वेडिंग बेल्स, उनका क्या सीन है? Wedding maybe next year. I'm not sure. I want to focus on my career right now. So that's like, अगर हो जाता है तो हो जाता है. Like if not, no problem. But as far as my career goes, abhi I have a very interesting project. Oh my God, Hassan, you will love it. It is so scandalous. It's like major episodes. Music to my ears. Scandalous. All right. Looking Dude, forward to that one. I was reading it. I was reading it, and I was literally like, there were some scenes I was like, it is like masale dar. It is going to be so much fun for you guys to review. You will have a ball. When do we get to watch it? Yeah, I think so far the plan is that we're going to come on as soon as Eid ends. So like the 4th, 5th day of Eid, we should be on air. We're starting shooting abhi as soon as lockdown ends. It's called abhi jo tentative title hai, it's called Masi और Meera, and I'm Masi Meera. और मीरा. Yeah, लेकिन इसमें वो एक चीज है which I'm so happy about कि उन्होंने वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की नेगेटिव नहीं दी. अच्छा, चले जबरदस्त. आप कौन सी वाली इसमें से, मासी और मीरा में से? मीरा. मीरा, ठीक है. एंड एनीथिंग अबाउट कौन से चैनल पे आ रहा है, कास्ट कौन है, कुछ और रिवील कर सकती हैं अभी या नहीं? It's going to be on ARY. And abhi the only person I can reveal in the cast other than me is on parallel lead is Anmol. अच्छा, Anmol अनमोल Baloch. बलोच. Yeah. Okay. So Masi and Meera is like Anmol and me. All right. Basically. ठीक है. Yeah. Really looking forward to it. Thank you very much for giving us time, Ashal. It's been such a pleasure. Thank you for having me. No, it's been such a pleasure, and honestly, मतलब जितना हमने क्रिटिसाइज किया है, थोड़ा सा हक को मुझे दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगा शायद आप लोगों की टीम में से आप लोग बात ना करना चाहें, बट थैंक यू.
because अक्सर हमारे No, viewers भी please, हमसे by comments में all पूछ रहे हैं. means, your criticism is always welcome, and like we all take it very well. That's our work, right? Thank you very much. Please do thank the entire team as well, जिनसे आपकी बात होती है. जो Of आप कह रही course. चैट विंडो है, उसमें मेरी तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर दिएगा कि at the end of the day थोड़ा सा हक is really entertaining us, and I hope जो barring जो कुछ मसले मसाइल थे बीच में उस पे काम करें, और हम सब, हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम वो हाईलाइट करें, और अगर आपको लगता है कि वो मैसेज किसी न किसी तरह से डिलीवर हो रहा है, और जो मुझे खुशी हुई कि आप सब लोगों ने मिलके बैठ के एंड में डिसाइड किया कि फिनाले को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, तो that's great. I mean, that's a great sign. So really looking forward to more interesting projects from you. Oh, thank you so much. Thank you, Hassan. And please give Amna my love and salams as well. I will. Lastly, जाते जाते लॉकडाउन सही जा रहा है, आप सही हैं, ठीक हैं? I'm going crazy. I'm beginning to lose my mind. Tell me about it. We all are. Once again, thank you very much, and all the best. And Michelle, You too. good See you luck. soon. Take care. Bye. Bye.